Good morning, dear students. As you know, we have been discussing chapter second of history, kings, farmers, and towns. So far, we have discussed 5 points of this chapter, which is like 16 Mahajanpad, prominence of Magadh, rise of an empire or Mauryan empire, and the new notions of kings and everything. Today, we will start the topic towns and trades. The topic today we will going to take is towns and trades. And the first topic will be new cities. What does we are going to study in this topic particularly? In this topic we are going to study that which towns or urban centers has been developed during the period of 600 BC to 600 century. Means 600 century से 600 BC के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में कौन कौन से जो सेंटर्स हैं, चाहे वो अर्बन सेंटर्स हो या मार्केट टाउन हो, पिलग्रिमेज सेंटर्स हो, वो डेवलप हुए हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशंस के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशंस, इकोनॉमी, पूरा एक तरीके से जो टाउन्स हैं उनके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, न्यू सिटीज। Let us retrace our steps back to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BC. 6th century BC से जो भी urban centers emerge हुए हैं several part में हमारे इंडिया की, उनको हम retrace करते हैं। As we have seen, many of these were capitals of महाजनपद। अधिकतर जो देखिए इनमें से जो है वो क्या थे, महाजनपदों की कैपिटल, लाइक पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ मगध, उज्जैनी कैपिटल ऑफ अवंती, capital of Avanti, Takshashila, capital of Kandhar, like this. Mainly, the urban centers were capitals of Mahajanpad. Virtually all major towns were located along routes of communication. Virtually, अगर हम देखें तो all major towns were located along routes of communication. जो routes थे communication के, उन communication के routes के ऊपर जाएंगे institute थे. Like as I have already explained, that a route which is connecting Toshli in Odisha, West Bengal to Takshashila, known as Uttarapad or Northern Pathway. Northern Pathway या उत्तरापथ जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर जैसे ये ट्रेड रूट है, इसी तरीके से साउथ के ट्रेड रूट्स, जो ट्रेड रूट्स है या जो कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश करने वाले रूट्स है, उसके आसपास मेजर टाउन जो है वो अधिकतर इस्टेब्लिश हुए। सम सच एज पाटलिपुत्र पर ग्रेवियन रूट। इसी में जो देखिए हमारे सामने पाटलिपुत्र जो कि ग्रेवियन रूट पर जो है सिचुएटेड था, गंगा जो है उसके रेवियन रूट पे। अदर सच एज उज्जैनी वर अलॉन्ग लैंड रूट्स एंड गेट अदर सच एज कुहार वर नियर द कोस्ट वेयर फ्रॉम सी रूट्स बिगेन। मेनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखिए मेजर हम क्या बात कर रहे हैं न्यू सिटीज के अंदर। In the phase of 600 BC to 600 century, the period from 6th century, there were so many of urban centers has been emerged in several part of the subcontinent. Means in the subcontinent or Indian land, so many of urban centers has been emerged from the 6th century BC onwards. These centers, these towns were mainly the capital of Mahajanpad, or they are located on the routes of communication like Patliputra, which is in the capital of Magad Mahajanpad, also located on the neighboring routes. Ujjaini, capital of Avanti, and located on the land routes from north to south, such as these. Then the next topic is urban population, elites and crowd person. Second देखिए हम क्या बात करेंगे, urban population के लिए जो cities थी, इन cities में कौन से जो है लोग वो रहते हैं। Elites की बात करेंगे हम, crowd persons की बात करेंगे। We have seen that kings and ruling elites live in fortified cities। देखिए जो kings हैं और जो ruling elites थे, ruling elites का मीनिंग क्या होता है? देखिए ruling elites का मीनिंग होता है those people who have power in their hand, they work as a bureaucrat in the administration of the empire। यानी जो empire के administration में वर्क करते हैं एज ए bureaucrat, वो आते हैं elite class। तो जो king और elite class है वो fortified cities में रहते थे। Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these areas even today। ऑल्दो ये देखिए काफ़ी मुश्किल है कि जो एक्सकवेशन है वो करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं। अनलाइक द हरप्पन साइट्स को क्या है कि वो रेगिस्तान में भी, डेजर्ट एरिया में भी, तो एक बार अबंडन होने के बाद दोबारा से वहाँ लोग
फर्टाइल प्लेन है, जो मगध महाजनपद है या बाकी जितने भी महाजनपद है ये सारे फर्टाइल प्लेन्स में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से आज भी लोग क्या रहते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सकवेशन तो नहीं हुआ, बट स्टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैव recovered a wide range of artifacts. These include fine pottery bowls and dishes with a glossy finish known as northern black polish work, probably used by rich people and ornament tools, weapons, vessels, figurines made of range of material. Gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. देखिए ये जो है wide range of material है जिससे कि बने हुए हमें यहाँ पे These are the materials from which we have found ornaments, tools, वेसल्स, फिगरिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से मिली हैं। ये शो करता है वहाँ के लोगों का स्टेटस। द रिचर द प्रोडक्ट, द रिचर और द एक्सपेंसिव और द लग्जरियस द प्रोडक्ट, इट विल इंडिकेट दैट द पीपल हु यूज देम लिविंग लाइक द लग्जरियस लाइफ। You can see the gift of an image. This is a part of an image from Mathura. On the pedestal is a Prakrit inscription mentioning that a woman named Nagpiya, the wife of a goldsmith named Dharma, installed the image in a shrine. देखिए ये जो है क्या है यहाँ पे, ये एक मूर्ति है जो हमें मिली है, कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है। इस मूर्ति के अंदर जो है ये यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, ये जो है देखिए ये है इंस्क्रिप्शन, ये है इंस्क्रिप्शन और ये है इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी या खरोष्टी या प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर मेंशन है कि लेडी नेमिंग नागपिया, वाइफ ऑफ ए गोल्डस्मिथ, एक स्वर्णकार जो है उसकी वाइफ थी धर्मिका, उसने ये जो मूर्ति है ये मूर्ति वहाँ पे मंदिर के बाहर लगवाई। दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ये जो मूर्ति है ये लगी है, इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है इस इंस्क्रिप्शन से? ऑन दिस इंस्क्रिप्शन वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द नेम ऑफ द लेडी, the name of her husband and the birth and the occupation and also their social status. Now look at some important towns of empire. Empire है उसके कुछ important towns की अगर हम बात करें तो देखिए the important towns are like तक्षशिला, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, चंद्रकेतुगढ़, शीर्षपर्वत, ये जो है ये मेजर सेंटर्स हैं जो इस एरियाज में रूल करते थे। कल जैसे देखिए हमने गुप्त डायनेस्टी पीरियड के अंदर बात की थी, गुप्त डायनेस्टी जिसकी जो है प्रिंसेस थी प्रभावती, जिसकी शादी कहाँ होती है, वाकाटक के साथ। गुप्त डायनेस्टी की प्रिंसेस की मैरिज कहाँ होती है, वाकाटक के साथ। These are the major towns and urban centers of the civilization, of the 600 BC to 600 century period. By the 2nd century BC, we find short vertical inscriptions in a number of cities. These mention the name of the donor and sometimes specify his occupation as well. देखिए 2nd century के बाद में क्या चीज़ मिलने लगी कि जो inscriptions जो हमें जो भी चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर inscriptions के ऊपर जो है नंबर ऑफ सिटीज जो है वो हमें अलग अलग जगहों से मिली। वहाँ पे जैसे डोनर का नेम लिखा हुआ है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें जो है इनके मेंशन होना शुरू हो जाती है। That tells us about people who live in towns: washing clock, weaver, scribe, carpenter, potter, goldsmith, blacksmith, officials, village teachers, merchants and things. देखिए कितना वाइड रेंज जो है वो हमें इन इंस्क्रिप्शंस की मदद से पता चलता है। सोसाइटी जो है उस सोसाइटी का पूरा स्टेटस जो है वो हम जान लेते हैं इनकी मदद से कि सोसाइटी जो है उसके अंदर वॉशिंग क्लॉक शामिल है, वीवर शामिल है, उसमें स्क्राइब शामिल है, कारपेंटर्स, पोटर्स, goldsmith, blacksmith, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर, मर्चेंट, ये सारे लोग जो हैं एक टाउन में रहने वाले सारे लोगों का स्ट्रक्चर हमें पता चलने लगा 2nd सेंचुरी के बाद में, जबकि जो इंस्क्रिप्शन थे वो स्पेसिफाई मेंशन होने लगे। समटाइम्स गिल्ड्स और सिविल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स आर मेंशन एज वेल। कई बार जो गिल्ड्स या सिविल, व्हाट डज दिस वर्ड गिल्ड और सिविल मींस? गिल्ड और सिविल आर लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ traders or merchants, are organizations of traders or merchants or craft producers. These guilds probably procure raw materials, regulated production and marketed the finished product. It is likely that craft person use a wide range of iron tool to meet the growing demand of urban elites. The guilds है ये organizations होते traders के लिए raw materials है वो procure करते थे, production जो है उसको regulate करवाते थे, उसके बाद वो market में आते थे, उसको supply भी करते थे। नेक्स्ट हम बात करें इसमें
ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी व्हाट डज द कंडीशन ऑफ ट्रेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ 600 BC टू 600 सेंचुरी, यानी जो 600 BC से 600 सेंचुरी के बीच का पीरियड है, इन दिस पर्टिकुलर पीरियड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड किस तरीके से जो है यहाँ पे हो रहा था, व्यापार किस तरीके से हो रहा था, उसकी हम बात करें। सो ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड वाज द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द 6th century BC, land and river routes crisscross the subcontinent and extended in the various direction। देखिए 6th century के बाद में जो लैंड और रिवर रूट्स हैं ये काफ़ी सारे डेवलप होने सब कॉन्टिनेंट के अंदर और वेरियस डायरेक्शंस में डेवलप ओवरलैंड इन सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड एंड ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्टलाइन। देखिए सेंट्रल एशिया तक जो है वो हमारे लैंड रूट्स गए हुए थे और वहीं पोर्ट्स जो है उनकी मदद से भी हम काफ़ी एरिया से जो है ट्रेड करते थे। अरेबियन सी के अंदर देखिए ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और वहीं बे ऑफ बंगाल जो है उसकी मदद से हम जो साउथ ईस्ट एशिया है और चाइना है उसके साथ में ट्रेड हुआ करते थे। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दिस रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। कई बार जो रूलर्स हैं उन्होंने इन रूट्स को जो है कंट्रोल करने की भी कोशिश की इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, कोई कीमत तय करके जो है प्रोटेक्शन के बदले में वो इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते। तो ये चीज़ शो करती है कि देखिए जो ट्रेड है वो कहाँ कहाँ था। देखिए सिंपल सी चीज़ हमने इस पैराग्राफ में इंडिया के अंदर जो ट्रेड है वो काफ़ी डेवलप हो चुका था 6th सेंचुरी और उसके बाद में पीरियड में। 6th सेंचुरी और उसके बाद के पीरियड में लैंड रूट्स और सी रूट्स दोनों की मदद से जो है ट्रेड हो रहा था इंडिया में। लैंड रूट्स जो है उसकी मदद से हम सेंट्रल एशिया और उसके आगे तक की एरियाज में, यानी अगर मैं सिंपली वर्ड में बात करूँ तो वी कैन सी दैट जो ग्रीक एम्पायर है वहाँ तक हमारे लैंड रूट से कॉन्टैक्ट थे, यानी लैंड रूट से जो है हम ग्रीक एम्पायर तक हमारे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुए। वहीं अरेबियन सी जो है अरेबियन सी की कोस्ट से हमारे ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में जो है ट्रेड कॉन्टैक्ट शामिल थे, और बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की तरफ हमारे जो है ट्रेड कॉन्टैक्ट था। क्योंकि ट्रेड कॉन्टैक्ट जो है वो काफ़ी बड़े एरियाज में मीन्स ट्रेड वॉज ऑल्सो फ्लोरिशिंग, एंड इफ ट्रेड इज फ्लोरिशिंग इट इज जनरेटिंग ए गुड इकोनॉमी, then rulers have often attempted to control these. Why are rulers trying to control these ports or these routes? Because they are prosperous routes और they are having more economy generation। तो वो इकोनॉमी जो है जो वहाँ से जनरेट होगी, जो इनकम वहाँ से जनरेट होगी, उस इनकम को ये जो है प्राइस के बदले में ले सकते हैं, प्रोडक्शन के बदले में, इसीलिए ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। Those who traveled these routes included paddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravans of bullock cart and pack animals। देखिए कौन किसने इन रूट को जो है यूज़ किया होगा, तो इस रूट को यूज़ करने वाले लोगों में देखिए पैदल चलने वाले लोग जो है उन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा। वही जो मर्चेंट्स हैं उनके जो कारवास होते हैं बुलोक कार्ट और पैक एनिमल्स की वजह से उन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा। कारवास का मतलब है a group of merchants like 30-40 merchants move together for trade। ट्रेड के लिए जैसे तो साथ में 30 से 40 जो है बिजनेसमैन तो साथ में ट्रेड के लिए अपना सामान लेके जाते हैं, कहीं उसको कहते हैं कारवां। सामान साथ में होता है, एनिमल्स के ऊपर पैक करते हैं। ऑल्सो देयर वर सीफेयरर्स whose ventures were risky but highly profitable। वहीं देखिए सीफेयरर्स यानी नाव चलाने वाले लोग भी थे जिनका जो काम है वो थोड़ा रिस्की था लेकिन काफ़ी प्रॉफिटेबल था। सक्सेसफुल मर्चेंट डिजिग्नेटेड एज मस्तूरन इन तमिल एंड सिटीज इन सातवाहन इन प्राकृतिक। देखिए जो पैसे वाले या जो हम ये सीधे शब्दों में बात करें, जो रिचर जो मर्चेंट्स थे उनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज हुए। तमिल लैंग्वेज में जो है नेम यूज हुआ उनके लिए मस्तवन, और सिटीज नाम जो है वो यूज हुआ है प्राकृत के अंदर। A wide range of goods were carried from place to another। कई सारे जो सामान है देखिए वो यहाँ पर ट्रेड हो रहे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द आइटम्स व्हिच आर ट्रेडिंग। कौन कौन से सामान जो है वो ट्रेड हो रहे थे इंडिया से, किन सामानों को जो है व्यापार में यूज दे रहे थे, बिजनेस में यूज ले रहे थे। तो साल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, medicinal plants, to name a few, spices, especially paper were in high demand in the Roman Empire as well। Textile and medicinal plants and these were all transported across the Arabian Sea to the Mediterranean। देखिए ये वाइड रेंज जो प्रोडक्ट है जो यहाँ से ट्रेड की जाती थी और कहाँ से ट्रेड की जाती थी, अरेबियन सी से और किस तरफ, मेडिटेरेनियन सी से। रोमन एम्पायर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 in third and empire of course 349 we have already stated that Roman Empire, Mediterranean Sea is the heart of the Roman Empire। देखिए ये जो है मालाबार जो प्रेजेंट डे कहाँ पे है हमारे केरला में, ये वो जगह थी जहाँ से ट्रेड हो रहा था रोमन एम्पायर के साथ में। द प्लेस फ्रॉम वेयर रोमन एम्पायर जिसके साथ में ट्रेड हो रहा था वो कौन सी
सी जगह थी, मालाबार मोस्टली प्रेजेंट डे का केरला का सिचुएटेड है। बात करते हैं, देखिए Here is an extract from Pericles of the Erythraean Sea composed by an anonymous Greek seller। एक ग्रीक सेलर है, ग्रीक फर्स्ट सेंचुरी का, उसके द्वारा एक लिखी हुई जो है पेरिक्लस है, उसका ये छोटा सा टुकड़ा है जिसकी हम बात करेंगे। They send large ships to these market towns on account of the great quantity and bulk of paper and malabithrum, possibly cinnamon, produced in this region. They are imported here in the first place a great quantity of coin, topaz, antimony, a mineral used as a clothing substance, coral, crude or glass, copper, tin, lead। देखिए वेरियस जो मटेरियल्स है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रीशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैव बीन फाउंड इन Kodumannal, Tamil Nadu। It is likely that local traders brought the stone mentioned in the Pericles from sites such as these to the coast। कौन से पोर्ट्स के ऊपर जो है हमें सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें कोडुमन्नल, तमिलनाडु से। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आइटम्स कौन कौन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है कॉइन्स एंड किंग्स एंड व्हाट डज द कॉइन्स वर इशूड बाय द किंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड के जो किंग्स हैं और जो कॉइन्स हैं उनके बारे में जानने के सोर्सेज और किस तरीके के कॉइन्स उन्होंने डेवलप किए उसके बारे में हम बात करते हैं। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। देखिए कुछ हद तक जो है एक्सचेंजेस जो है यानी जो ट्रेड हो रहा था वो किसकी मदद से हो रहा था, कॉइनेज की मदद से, सिक्कों की मदद से। पंचमार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड इन यूज। जो पंचमार्क कॉइन्स थे सिल्वर और कॉपर के वो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूज होना शुरू हुए थे। और ऐसे बहुत सारे जो है सब कॉन्टिनेंट में हमारे जो इंडिया है उसके अलग अलग पार्ट से रिकवर्ड हुए और इनको न्यूमिस्मेटिक्स जो है उन्होंने स्टडी किया है और इनके बारे में जो है काफ़ी जानने की कोशिश की है। न्यूमिस्मेटिक्स का मीनिंग क्या है, व्हाट डज द वर्ड न्यूमिस्मेटिक मीन? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक्स। जो कॉइन्स है इनकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। Attempt made to identify the symbol on Panchmark coins with specific ruling dynasty including the Maurya suggest that these were issued by kings। देखिए जो न्यूमिस्मेटिक्स है उसकी मदद से कॉइन्स की स्टडी की, उसके बाद में जो उनके ऊपर सिंबल्स हैं उन सिंबल्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की है कि ये जो है किसी स्पेसिफिक रूलर ने या किसी रूलिंग डायनेस्टी ने जो है इनको इशू की होंगी। जैसे मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी के इशूड कॉइन होंगे, सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय किंग्स। इट इज लाइकली दैट merchants, bankers and townspeople issued some of these coins। The first coin to bear the name and image of rulers were issued by the Indo-Greeks। क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट कॉइन who has the name and image of the ruler were issued by, यानी किसके द्वारा वो कॉइन इशू किया गया था जिसके ऊपर नेम और इमेज थी इंडिया में सबसे पहले। तो इंडो ग्रीक्स जो हैं जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के सब कॉन्टिनेंट का वहाँ पे रूल करते थे उनके द्वारा सबसे पहले जो है नेम और इमेज वाले कॉइन्स इशू किए गए। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन पर इशूड circa 1st century by the Kushan and the first gold coin of India। इंडिया का पहला गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, तो कुषाण डायनेस्टी ने इशू किया। These were virtually identical in weight and those by contemporary Roman emperor and the Parthian ruler of Iran and have been formed from several sites in north and central Asia। देखिए ये जो कॉइन्स थे जो इशू किए थे कुषाण डायनेस्टी के रूलर ने, ये काफ़ी आइडेंटिकल थे वेट के अंदर, यानी जो वेट था इनका वो लगभग सिमिलर था किसके जैसा, जो कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पायर और पार्थियन इरानियन रूलर्स के जैसा, यानी उनकी कॉपीज हम कह सकते हैं कि उनकी कॉपीज जो है वो इन लोगों ने प्रिपेयर की होगी। द वाइड स्प्लिट यूज, ये देखिए ये है एक पंचमार्क कॉइन्स जो पंच किया जाता था इस तरीके से सिंबल को, ये होते हैं पंचमार्क कॉइन्स। सो नेम बिकॉज सिंबल व पंच और स्टैम्प ऑन टू द मेटल सर्फेस। जो सिंबल से पंच किए जाते थे मेटल्स के ऊपर। The widespread use of gold coin indicate the enormous value of the transactions that were taking place. Besides, hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India. It is obvious that networks of trade were not confined with political boundaries. South India was not part of the Roman Empire, but there was close connection through trade। देखिए जो कई सारे कॉइन्स है रोमन एम्पायर के वो हमें साउथ इंडिया से मिले, ये सजेस्ट करते हैं कि जो वाइडली जो है यहाँ पे रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड कॉन्टेक्ट्स बने हुए। Coins were also issued by tribal republics such as that of the Yodhe of Punjab and Haryana।
देखिए जो कॉइन्स हैं वो जरूरी नहीं है कि हर बार किंग्स या लेटर इशू करें, कई सारे केसेस में जो कॉइन्स हैं वो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं वो भी इशू करते थे, जैसे योधे ट्राइब जो है जो पंजाब और हरियाणा में रूल करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, उसने इशू किए हुए हैं। Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yodhis, pointing to the latter's interest in perception in economic exchange। कई सारे जो है ऐसे कॉइन्स मिले हैं योधे डायनेस्टी के। Some of most spectacular gold coins were issued by the Gupta ruler। देखिए जो सबसे स्पेक्टिकुलर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं योधे कॉइन जो ट्राइबल डायनेस्टी जो है उसके द्वारा इशू किए गए थे। देखिए जो सबसे स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किए गए थे गुप्त रूलर्स के द्वारा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर एंड साइंस। इंडियन आर्ट कल्चर और साइंस उसके लिए गोल्डन पीरियड माना जाता था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है उसके लिए यूज में लिए जाते हैं। From 6th century onwards, finds of copper coins taper off. Does this indicate that there was some kind of an economic crisis? ठीक है, 6th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है उसमें हम देखें तो जो गोल्ड कॉइन्स इनकी जो है मिलने की संख्या में कमी आने लग जाती है। रीजन उसके पीछे ऐसा मानते हैं कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस रहा होगा। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ये जो इशू है कि क्यों जो है 6th सेंचुरी के बाद ये जो कॉइन्स हैं वो मिलना कम हो गए, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं दो अलग अलग थ्योरी से दोनों की तरफ। सम सजेस्ट दैट विद द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। कम्युनिटीज एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका क्या मानना है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साइड का, क्योंकि वो कोलैप्स कर चुका था। क्योंकि हमने पढ़ा है अपनी क्लास 11th में चैप्टर 3 जैसे मैंने बताया उसमें कि गोथ, वैंडल्स, लॉम्बार्ड्स जो जर्मनी ट्राइब क्योंकि ये कब्जा कर लेती उन एरियाज पे तो रोमन एम्पायर कोलैप्स कर देता है वहाँ से। अब जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया तो उनके साथ में ट्रेड भी कम हो जाएगा, ट्रेड कम होगा तो प्रॉस्पेरिटी कम होगी, जिसकी वजह से जो है गोल्ड कॉइन बनना वाली कम होंगे। दूसरे जो है देखिए दूसरा जो ग्रुप का वो क्या कहता है अदर्स आर्ग्यू द न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाउन। दे आल्सो पॉइंट आउट दैट टू पॉइंट आउट वन दैट टाइम ऑफ वर कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। कुड इट बी दैट देयर आर प्योर फाइंड बिकॉज़ कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रादर देन बीइंग होल्डेड। दूसरे मानने हैं कि नए जो टाउन सिटीज बने हैं उसकी वजह से मिलना कम हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि वो सर्कुलेशन में कम होने की बजाय उनको इकट्ठा करने जाना जो है वो शुरू हो गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त डायनेस्टी के कॉइन्स जिसमें these are the coins of गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी जो है उसके कॉइन्स जिसके अंदर जो रूलर है उसको इमेज किया हुआ है, जैसे गोल्ड कॉइन्स ये गुप्त डायनेस्टी के जो रूलर है उसकी इमेज को जो है इन्वेट किया गया है इसके अंदर। आगे हम बात करें these are an Ashokan script। ये जो है एक अशोकन स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बैक टू बेसिक्स व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे।